I welcome you all to this course on English grammar for competitive exams. I am Divijot Kaur, Research Scholar, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. In today's lecture, we are going to discuss about conjunctions. Conjunctions are very commonly used words in our day-to-day conversations, but we might not know its actual meaning. So we are going to discuss about it in detail in today's lecture. So let's begin with what is a conjunction. Conjunction is a word that connects parts of a sentence, connects together words, phrases or clauses. तो बेसिकली कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड है जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करता है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है. वो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं या क्लॉजेस हो सकते हैं जिन्हें हम जॉइन करते हैं. अब अगर आप सोच रहे हैं व्हाट इज फ्रेज एंड क्लॉज, सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ ग्रामेटिकल यूनिट, यानी कि वो एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक पेन, a red pen, a white board, a white screen. And clause क्या है? Clause is something that has a subject and a verb. You will understand this better when we discuss the examples of conjunctions. So broadly, there are three types of conjunctions. But इतनी technicalities में जाना important नहीं है. What is important is to understand कि conjunctions को कहाँ use करना है और कैसे correctly use करना है. That is more important when it comes to competitive exams. The first category of conjunctions is coordinating conjunctions. You can learn these conjunctions using the fanboys abbreviation for, and, nor, but, or, yet, so. Second one is subordinating conjunctions like before, after, so that, because, in order that, unless, as much as, etc. etc. And the third category is correlative conjunctions, which come in pairs like either or, neither nor, so that, such that, both and. We are going to discuss about all these in detail. First is coordinating conjunctions. So coordinating conjunction connects two grammatically equal words, phrases or clauses. ये ध्यान से देखिए, we are talking about two grammatically equal words, phrases or clauses. What do we mean by grammatically equal? You might have heard about dependent and independent clauses. तो grammatically equal मतलब होता है that we are not connecting the main clause with the subordinate clause. हम dependent independent की बात नहीं कर रहे. We will connect two independent clauses together using coordinating conjunctions. We will discuss this with examples so you will understand this better. And second is these are single word conjunctions. ये एक ही word के होते हैं. They always come between the words or clauses they join. ये हमेशा वर्ड्स और क्लॉजेस के बीच में आते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए, स्टार्टिंग में या एंडिंग में नहीं यूज होते हैं. Look at these examples. Sohan and Rahul are good friends. And here is a coordinating conjunction. So it connects Sohan and Rahul. These are two nouns. Second is he will pass for he works very hard. अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रामेटिकली इक्वल क्या होता है. Look at the first part of this sentence. He will pass. As it is. Second part को भूल जाइए, सिर्फ first देखिए. He will pass. वो पास हो जाएगा. It makes sense. इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है. So this is independent. And second वाले को अगर हम इसी तरह से देखें, he works very hard. वो बहुत मेहनत करता है. This also makes sense. ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है और हम इन दोनों को for से ज्वाइन कर रहे हैं. So कि ये दोनों ग्रामेटिकली इक्वल सेंटेंसेस है, बट हम इन्हें कनेक्ट करके एक मीनिंग का सेंटेंस बना रहे हैं.
थर्ड वन, आई डोंट लाइक फुटबॉल, नो डू आई लाइक क्रिकेट, मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है ना ही क्रिकेट पसंद है. So nor here is a coordinating conjunction. I went to the store but it was closed. मैं स्टोर गई थी but वो closed था. But is the coordinating conjunction. She must be in the room. वो या तो रूम में होगी और on the terrace या फिर terrace पे होगी. He is very rich yet he is not contented. वो बहुत अमीर है पर वो फिर भी संतुष्ट नहीं है. I was hungry so I ate sandwich. So here is a coordinating conjunction. So इस तरह से अगर आप सारी सेंटेंसेस को ब्रेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रामेटिकली इक्वल है सारे के सारे सेंटेंसेस जो भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. दे जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहाँ पर हम ग्रामेटिकली इक्वल फ्रेजेस या क्लॉजेस की बात कर रहे थे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ऐसा नहीं है. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सबऑर्डिनेटिंग, तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से ज्वाइन करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन अगेन व्हाट डू वी मीन बाय सबऑर्डिनेटिंग एंड मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग मतलब डिपेंडेंट क्लॉज व्हिच डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, जो कि अपने आप में मीनिंगफुली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. एंड मेन क्लॉज क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो अपने आप में ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाते हैं, जैसे कि अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में देखा. बट सबऑर्डिनेटिंग को हम मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. सेकेंड, इट कैन बी वन और मोर वर्ड्स, अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस which are only one word conjunctions. Third, it might come in the beginning of a sentence or in the middle. Unlike coordinating conjunctions जो कि सिर्फ मिडल में ही आते हैं, ये बिगनिंग में भी आ सकते हैं. There are 6 categories of subordinating conjunctions. Conjunctions of time, purpose, reason, condition, contrast, and comparison. First, let us discuss about conjunctions of time. जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम टाइम की कंजंक्शंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आफ्टर, बिफोर, as soon as, when, while. Let's look at the example. I start my work after having coffee. मैं अपना काम कब स्टार्ट करती हूँ? पीने के बाद. तो यहाँ पर हम टाइम यानी समय को दर्शा रहे हैं. He died before he reached 30. उसकी डेथ कब हुई थी? 30 years होने से भी पहले. He will leave as soon as he reach here. वो कब जाएगी? जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे. It happened when I was in Bangalore. ये कब की बात है? कब हुआ? जब मैं बैंगलोर में थी. The sun will rise while the world lasts. सन कब तक, सूरज कब तक उगेगा? जब तक ये दुनिया है. तो यहाँ सारे सेंटेंसेस में हम टाइम की बात कर रहे हैं. कब, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके बाद हुआ, किसके पहले हुआ. Second one is subordinating conjunction of reason. रीजन यानी कि हम वजह यानी कारण बताते हैं किसी चीज का, तब हम यूज करते हैं बिकॉज, एज, सिंस. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी. क्यों फेल हुई? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी. इट टेल्स अस द रीजन. लेट अस गो टू बेड एज इट इज ऑलरेडी 12. हमें सो जाना चाहिए. क्यों? बिकॉज 12 बज चुके हैं. I will go for shopping since it is a weekend. मुझे शॉपिंग जाना है. क्यों? क्योंकि ये वीकेंड है. तो हम रीजंस दे रहे हैं हमारी स्टेटमेंट्स के लिए. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस. पर्पस यानी कि हम उद्देश्य बताते हैं अपने सेंटेंसेस में, तब हम यूज करते हैं कंजंक्शन जैसे कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट. फॉर एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी मे लिव. हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सके, सर्वाइव कर सके. ये हमारा खाने का उद्देश्य है. He worked hard so that he might pass.
उसने हार्ड वर्क क्यों किया? ताकि वो पास हो सके। शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट शी मे बिकम रिच। वो क्यों हार्ड वर्क करती है? ताकि वो रिच हो सके। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। जब हम कंडीशन यानी कि हम शर्त रखते हैं किसी चीज के लिए, तब हम यूज करते हैं इफ, एज इफ, अनलेस। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी पनिश्ड इफ यू आर लेट। यानी हम कंडीशन बता रहे हैं, एक शर्त बता रहे हैं कि अगर आप लेट आएंगे तो पनिश होंगे। ही रैन एज इफ ही हैड बीन शॉट। वो ऐसे भागा जैसे उसे शूट कर दिया गया था। तो हम यहाँ कंडीशन बता रहे हैं। You cannot succeed unless you work hard. आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी कि हम जब अंतर यानी किसी चीज में डिफरेंस बताना चाहें तब हम यूज करते हैं ऑल्दो, दो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। तो अब हम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन सिखा रहे हैं कि वो गरीब है पर फिर भी वो ऑनेस्ट है। सेकेंड, ही इज नॉट कंटेंटेड दो ही इज रिच। वो रिच है पर वो संतुष्ट नहीं है। तो हम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस को इन वर्ड्स के थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट इज कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। जब हम तुलना कर रहे हैं किसी चीज की, तब हम यूज क्या करते हैं? एज मच एज, नो लेस देन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हर एज मच एज यू। मैं उसे उतना ही पसंद करती हूँ जितना कि तुम्हें। ही लाइक्स मी नो लेस देन यू। वो मुझे उतना ही वो मुझे तुमसे कम पसंद नहीं करता। तो हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। The third category of conjunctions is correlative conjunctions. So these conjunctions work in pairs. जैसे कि हमने coordinating subordinating में देखा कि वो सिंगल वर्ड है या फिर वो मोर देन वन वर्ड है, बट कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स में आते हैं, ये सिंगल नहीं होते। द रेस्ट इज सेम कि दे हेल्प अस जॉइन parts of a sentence like words, phrases or clauses, so on and so forth. The only difference in correlative and the other conjunctions is that ये pairs में आते हैं, ये single word, more than one word नहीं, ये सिर्फ pairs में use होते हैं। These are some of the examples of how we use correlative conjunction in pairs. आपने बहुत commonly ये conjunctions देखे, सुने, पढ़े, लिखे भी होंगे, like either or, neither nor, both and, such as, so that, not only but also. तो इनको अगर हम अकेले इंडिविजुअली यूज करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ हम either लिख दें और ना यूज करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। नेदर यूज कर दे और नॉर यूज ना करे तो भी कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हमें ये पेयर्स में ही यूज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एदर जीनियस और अ फूल। या तो वो बहुत ही जीनियस है या फिर बेवकूफ है। तो अगर हम यहाँ से और हटा दें, अगर हम बोले ही इज एदर अ जीनियस और फूल, it does not make any sense. So you have to use them in pairs. इन्हें साथ में ही यूज किया जाए। She was neither happy nor sad. वो ना तो खुश थी ना ही उदास थी। He is both a poet and a philosopher. वो poet भी है और philosopher भी है। There is no such country as India. इंडिया जैसी कोई country नहीं है। She was so tired that she could not walk. वो इतनी थक गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी। I visited not only Mumbai but also Pune. मैं ना सिर्फ मुंबई गई बट पुणे भी गई। So I think now you better understand how we use these pairs. So अब हमने समझ लिया कि conjunctions क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बट एक important aspect जो हम मिस कर देते हैं वो है punctuating conjunctions. Conjunctions को punctuate करना भी बहुत important है written communication में,
Really important to understand when to use a punctuation and when to not. So let us discuss about punctuating conjunctions. Rule number 1. When there are two words or phrases, there is no comma. जब हम सिर्फ दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस की बात करें तब कॉमा यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल एंड ऑनेस्ट. So here we have two words, beautiful and honest. Only two words. So हम यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे. We only use the conjunction. ना कंजंक्शन से पहले ना कंजंक्शन के बाद कॉमा. Second, does he work in a library or a restaurant? There are only two words, restaurant and library. So again, we are not using a comma here. We do not require any conjunction or any punctuation. We only write the conjunction. Moving on to rule 2. When there are more than two items, अगर दो से ज़्यादा objects या words हैं, then comma after each item and before the conjunction. जब दो से ज़्यादा वर्ड्स की बात हो रही तो हर वर्ड के बीच में कॉमा लगेगा और कंजंक्शन से जस्ट पहले कॉमा. लुक एट दीस एग्जांपल्स. आई ईट बर्गर, कॉमा पिज़्ज़ा, कॉमा चॉकलेट, कॉमा एंड आइसक्रीम. हर वर्ड के बाद में कॉमा यूज हुआ है और कंजंक्शन से जस्ट पहले कॉमा यूज हुआ है. राइट. Second example, I am confused whether to play cricket, football, badminton or tennis. So or here is the conjunction. तो हमने सारे वर्ड्स के बाद कॉमा लगाए और कंजंक्शन के जस्ट पहले. ओके, सो व्हेन वी यूज मोर देन टू वर्ड्स, दो से ज़्यादा वर्ड्स यूज करते हैं तो सारे वर्ड्स को कॉमा से डिस्टिंग्विश करेंगे और कंजंक्शन के जस्ट पहले भी कॉमा यूज करेंगे. थर्ड रूल. अब अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी टू यूज अ कॉमा राइट बिफोर द कंजंक्शन. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में जहाँ कंजंक्शन यूज होता है तो उससे पहले कॉमा यूज करना नेसेसरी है. लाइक ही गिफ्टेड वाइफ अ नेकलेस एंड शी लव्ड इट. सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हाउ इज इट इंडिपेंडेंट? लेट मी एक्सप्लेन. लेट्स ब्रेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. He gifted his wife a necklace. Make sense? Meaningful sentence है. उसने अपनी वाइफ को नेकलेस गिफ्ट किया. Let's break the second part as well. She loved it. ये भी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है कि उसे वो बहुत पसंद आया. तो these are two independent clauses. These are not, none of these is subordinating. तो इनको कनेक्ट करते वक्त बीच में कॉमा यूज होगा. सेकेंड एग्जाम्पल. Kiran wanted to work in London, but she missed home. तो ये भी इंडिपेंडेंट है. Let's just use the break and understand rule. आप ब्रेक करके समझिए कि वो मीनिंगफुल है तो वो इंडिपेंडेंट है. अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है. Okay, so we use a comma when we are connecting two independent clauses using a conjunction. Rule 4. अब बात है कि जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करते हैं तब क्या करना है. सो इसमें हम सीक्वेंस को देखते हुए पंचुएट करेंगे. इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट देन वी यूज अ कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज. जैसे कि बिकॉज वी हैव एन एग्जाम टुमारो, कॉमा वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट. क्योंकि कल हमारा एग्जाम है तो हम पूरी रात पढ़ाई करेंगे. यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है. बट नाउ इफ स्विच द सीक्वेंस, अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आए तो कॉमा हट जाएगा. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट बिकॉज वी हैव एन एग्जाम टुमारो. देयर इज नो कॉमा रिक्वायर्ड. यू जस्ट यूज द कंजंक्शन. जस्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, whether the dependent comes first or independent comes first. So these were the 4 rules. This is a lecture recap. What we have discussed in today's lecture. First, we discussed about what are conjunctions. Then we discussed about different types of conjunctions with examples in detail.
coordinating, subordinating, correlative. So just a brief. Coordinating क्या होते हैं? They are one word conjunctions. They join words, phrases or clauses, and they come in the middle of the sentence. But subordinating can be one word or more than one word, and they join only clauses as, and they can come in the middle of the sentence or in the beginning. And unlike both of these conjunctions, correlative conjunctions come only in pairs. The last one important point we discussed is about punctuating these conjunctions correctly. So that's all for today's lecture. Thank you, and I wish you all happy learning.